we call a failing heart or a heart failure. और हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन होती है जो अगर लेमैन इसको बड़ा कॉमनली यूज करता है वर्ड flank heart fail हो गया और पश्तो में heart fail should be this kind of thing, but that is what they usually refer to ischemic heart disease, और जो उसकी होती है manifestation. So that is what they usually would call किसी को हो गया ना acute myocardial infarction जिसको बोलते हैं, तो that is an acute हार्ट अटैक, तो लोग कहते हैं हार्ट फेल हो गया, तो वो हार्ट फेल होना नहीं होता, राइट? वो हार्ट फेल होना नहीं होता. हार्ट फेल होना क्या होता है लेमैन के लिए भी और आपके लिए भी. ये समझे हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है. इस कार्टून को देख लें. has been modified to the heart. Big vessels in inferior and all that, and the left ventricle is pumping, right? So it's pumping the blood everywhere. And in simple word, if this pump is failing, और ये अपना काम नहीं कर रहा है for a variety of reasons, तो you say that the heart is failing. Right? So it's not that chest pain, it's not that acute myocardial infarction, arrhythmias and all those things. They come under the causative, under the etiology of heart failure. समझे ना? Okay, so let's start. And I'm going to tell you some interesting facts about the heart and then the failing heart. And I will have a brief review of heart functions, regulations as well. क्योंकि कल मैंने कहा था कि आपको फिजियोलॉजी में ये आना चाहिए था हार्ट फेलियर के हवाले से. ये कार्टून क्या बता रहा है, ये तो यही बात है जो हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के हवाले से कह रहे हैं कि आप मरीज को बता रहा है डॉक्टर साहब you are very busy man and you don't get any time for exercise. So is exercising an hour a day or being dead? आप क्या चाहते हैं? You have to get out time for it. The beautiful heart illustrated there. कल ये सब मैंने पढ़ा दिया था, so no need to go through it. The human heart is the size of a fist. Now, मुक्का बना लेना, तो बस ये मुक्के ही की तकरीबन साइज का होता है. And it starts beating long before birth, usually as early as 21 to 48 days, एक महीने बाद after conception. So imagine your heart starting beating long before birth. The average heart would beat about 100,000 times daily. अपने beat को 70-75 per minute के हिसाब से और hours के हिसाब से और 24 hours के हिसाब से. So a 70-year-old man would have his heart beaten 2.5 billion times. कितना powerful. With every heartbeat, the heart pumps blood everywhere. Blood basic requirement है ना? Oh, it will go everywhere, up in the brain, side में, arms में, lower in the feet, and of course all the viscera, abdomen, skin. Average rate 72 times a minute. It can go up to double. It can decrease, it can increase, in between something like 60 to 90 with exercise and at times of extreme emotions. And you know, okay, it goes out, the blood goes out of the left chamber all over the body and from the right to the pulmonary circulation. And then having done its job of delivering the oxygen and the nutrient everywhere, then it collect the waste product, सारे metabolites भी
or oxygen, carbon dioxide be, and bring it back to the heart, to the right side of the chamber. And during its circulation through the liver and through the kidneys, you have got a lot of waste removed there. The body's entire supply of blood is about 5 liters through the body every minute. That's your stroke volume. In one day, the heart pumps nearly more than 7,600 liters of blood. Imagine, correct? कितनी इसकी वो है कैपेबिलिटी है. In lifetime में 70-year lifetime में the heart will pump something like slightly less than 200 million liters of blood and would have beaten that billion times जो मैंने earlier बता दिया. Almost 22 or 21 billion times. Diseases of the heart and blood vessels are #1 cause of death. More than twice as many people die from heart diseases than from cancers. And more than half of these deaths are then caused by heart attacks. And you have got specialized heart muscle, जो कि बाकी मसल से different है. कल प्रोफेसर ताज साहब ने पढ़ाया होगा, या कल रशीद साहब ने, कि you have got special conducting tissue and you got special excitation, contraction, relaxation, the different type of calcium channels, the pumps, and the heart contains specialized muscles called the leaders, which have the ability to contract and relax rhythmically, making the surrounding cells to do the same as well. A tireless, powerful muscle, the heart performs enough work, itna zyada work, that it can lift something like the size of a small car, ज़मीन से 1 फुट ऊंचा उठा सकता है. जितना ये पंपिंग, जितना ये परफॉर्म कर रहा होता है, अगर इस एनर्जी को आप कलेक्ट कर ले कि 1 घंटे में ये कितनी एनर्जी यूज कर रहा है और कितना ज्यादा ये पंपिंग कर रहा है, तो that energy is sufficient to lift a car 1 foot above the ground. So these were some interesting facts. But what happens is, मेरा काम तो mainly आपको disease के हवाले से बताना होता है ना. So when the heart is unable to do this function, you call it a heart failure. मेरे ख्याल में अब आपका concept clear हो गया होगा, and you can appreciate this definition of cardiac failure or heart failure. Cardiac failure occurs when the heart is unable to maintain sufficient cardiac output to meet the demands of the body. तो demands क्या है? वही ना, normal जो metabolism चल रहा है और उसके waste products बन रहे हैं, including carbon dioxide, इसको वापस लाना है और liver और kidney को तक पहुंचाना है और brain को oxygenation देनी है, and everywhere आपने कुछ करना. So when this thing is not happening, this is known as the heart failure, right? शुरू टाइटल स्लाइड पे आया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अभी आप इमेजिन करें, अगर फॉरवर्ड ब्लड पंपिंग नहीं होगी तो क्या होगा? सोच लें, इमेजिन करें और मुझे बताएं. आपकी माइक ओपन है ना? आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड. यस, एनीबॉडी? हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई है, बेचारा अभी जो तेजी से वो कर रहा था पंपिंग, वो नहीं कर रहा, राइट? अब जब वो नहीं कर रहा तो फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग क्या इफेक्ट होगा? एनीबॉडी? Enlargement of left ventricle, sir. शाबाश, that is one thing. क्योंकि the left ventricle has to push and push, उसको बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है? Any other effect from somebody else? शाबाश. मेरा ख्याल था लड़कियां बड़ी तेज हैं, लेकिन कल से मैं नोट कर रहा हूं कि ऑनलाइन में डाउन हो गई है.
क्लास में ठीक है, अब ऑनलाइन में डाउन होगी। भाई कुछ तो बोले ना, गलत बोले बेशक। अच्छा, तो जब ये पंपिंग कम होगी ना तो ब्लड बैक साइड पे जाएगा, राइट? तो कंजेशन हो जाएगी। कंजेशन का क्या मतलब होता है? व्हेन यू गॉट समथिंग गेटिंग एग्रीगेटेड, तो ब्लड की कंजेशन हो जाएगी। तो अगर लेफ्ट साइड जो है वो कम पंपिंग करेगा तो जो इसको ब्लड आ रहा है उस साइड पे कंजेशन, और इस तरह राइट साइड करेगा तो राइट साइड पे कंजेशन। तो कलेक्टिवली यू कैन कॉल इट समथिंग लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये लफ्ज जो है ये उसके साथ साथ चलता है। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर। अच्छा, आगे मैं क्लियर बता भी दूंगा। अगर अलग अलग से लेफ्ट और राइट डिजीज प्रोसेस अंडरलाइंग ऐसी है कि लेफ्ट और राइट अलग अलग से फेल हो रहे हैं, आई मीन एक चेम्बर फेल हो रहा है, तो आप कहते हैं लेफ्ट हार्ट फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और राइट फेल हो रहा है तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब एक सिंपल सी बात आप सोचें, इमेजिन करें कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल पंपिंग नहीं कर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहां से आ रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन से, पल्मोनरी वेन से, लंग से आ रहा है, तो सारे लंग्स आपके कंजेस्टेड हो जाएंगे, राइट? तो जब लंग्स कंजेस्टेड हो जाएंगे तो यू कॉल इट पल्मोनरी एडिमा, राइट? स्लाइड्स निश्ता जी बेटा, स्लाइड्स नहीं आ रहे हैं आपके पास? गालबन उस साइड की प्रॉब्लम होगी क्योंकि राइट। तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये जो मैंने एक्सप्लेन की ना, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये तो डिजीज ना हुई इन इटसेल्फ, राइट? इट इज अ प्रेजेंटेशन, इट्स अ कंडीशन व्हिच इज बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग डिजीज। कुछ है जो हार्ट को पंपिंग करने नहीं दे रहा है, राइट? तो जिस तरह मैंने बताया था उस दिन रीनल फेलियर के हवाले से, लिवर फेलियर के हवाले से, सेरेब्रल फेलियर के हवाले से, कि एंड ऑर्गन्स जो हैं ये फाइनली डैमेज हो जाते हैं और दे फेल टू डू देयर वर्क। तो इसी तरह हार्ट भी फेल होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। सो in other words, it is clinical presentation of a disease. It is not a diagnosis in itself, but it tells you that there are something precipitating factor which are leading to underlying cardiovascular disease. जैसे अब ischemic heart disease सबसे common इसकी वजह है, तो अल्टीमेटली डिजीज बन जाती है। आप कहते हैं ये इस पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, लेकिन क्यों है भाई? इसलिए इसको ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर इसको 10 साल से है, तो इसलिए है। इस मरीज को क्यों है भाई? इसकी पैदाइशी दिल के वॉल खराब है या इसके दिल में सुराख है, तो अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये है। इसको रिमेटिक हार्ट डिजीज हुआ था, इसका माइट्रल वेल खराब है। इस बंदे का इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, इसको पिछले साल हार्ट अटैक हुआ था, तो तब से अब उसके हार्ट में फेलिंग शुरू की है। लेकिन हर एक इस्कीमिक हार्ट को फेलिंग हार्ट नहीं होता, हर एसडी और वीएसडी और हर हाइपरटेंशन को हार्ट फेलियर नहीं होता। ये जब अनकंट्रोल्ड चलते रहते हैं डिफरेंट बीमारियां तो हो जाती है। अच्छा, थोड़ी सी अभी फिजियोलॉजी की बात करते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि आज मैं इसको टच करूंगा जो उस दिन डॉक्टर साहब ने बताया था, तो ट्राई टू बी विद मी, जागते रहें, क्योंकि उस दिन भी आपने पूरी तरह नहीं सीखा। और आपके चैट सेक्शन में मैंने बड़े अजीब अजीब कमेंट्स देखे कि प्रोफेसर रशीद जो है वो आपको सारी 2-3 चैप्टर एक ही दिन में पढ़ा रहा है, खत्म कर रहा है। ही वाज ट्राइंग टू रनिंग थ्रू इट। तो खैर मेरे उनसे तो डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन व्हाट आई नोटेड वाज एक दो स्टूडेंट्स ने तो बड़ी फनी रिमार्क्स दी थे। आई हैव स्क्रीनशॉट्स बाय द वे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ट्राई टू बी विद मी, इसको समझी, और अगर आपको समझ नहीं आती तो इमीडिएटली पूछ लें।
ठीक है। अच्छा, ये जो पंपिंग होती है हार्ट की, तो फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग ये कैसे होती है? क्योंकि हम फेलिंग की बात सही तरीके से जब कर सकेंगे when we are talking about, or we are clear about the physiology, we can make it something I call pathophysiology, उसको डिजीज में डाल लेते हैं। 4 मेजर डिटरमिनेंट। नंबर 1, आपकी कंट्रैक्शन कितनी है, आपका हार्ट कितनी इफेक्टिवली कंट्रैक्ट कर रहा है। और जब ये इफेक्टिवली कंट्रैक्ट कर रहा होता है तो इन वेंट्रिकल्स की तरफ प्रीलोड कितना है, पीछे से वीनस सिस्टम में कितना ब्लड आ रहा है टुवर्ड्स द हार्ट, नंबर 2। एंड नंबर 3, आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट इजेक्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस सामने से कितने आ रही है। अब आप देखिए इसमें जो फैक्टर्स हैं, एक और फैक्टर है चौथा, अभी बताने जा रहा हूं। तो अगर हार्ट की मसल्स में कोई डिजीज होगी तो आपकी कंट्रैक्शन का प्रॉब्लम होगा, राइट। पीछे से वेंट्रिकल्स सर्कुलेशन में आपका ब्लड ज्यादा आ रहा है फॉर व्हाटएवर रीजन को डिस्कस करेंगे, तो दैट इज प्रीलोड। इट विल लीड टू इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। हार्ट की सिस्टोली है, डायस्टोली है ना, तो अगर प्रीलोड ज्यादा है तो ज्यादा वेंट्रिकल में ब्लड आएगा and the ventricle will be unable to accommodate it and consequently प्रॉब्लम होगी। और एक अहम फैक्टर आफ्टर लोड कि अगर आर्टेरियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और इसको यूं इमेजिन करें कि वेन्स जो है वो बड़े 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 हैं, पेरिफेरी में वो छोटे होते जाते हैं, सारी छोटे हैं और बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और फाइनली सुपीरियर इंफीरियर में रखे हुए सारा लोड आ जाता है and goes into the heart। और इस तरह पल्मोनरी और आर्टेरियल साइड पे आर्टरी है, बड़ा ब्लड वेसल है, आगे सबक्लेवियन एंड नीचे सब चला गया, तो छोटे होते चले जाते हैं एंड द मैक्सिमम प्रेशर इज इन द आर्टेरियोल्स। तो जितनी ज्यादा वो रेजिस्टेंस फील होगी द मोर यू विल हैव द प्रॉब्लम, राइट। अगर ये इस पर रेजिस्टेंस कम होगी तो हार्ट को आसानी से काम करना होगा। तो ये बातें तो क्लियर है ना। नंबर 4 जो फैक्टर है वो है आपका विस्क। अगेन प्रॉब्लम विद द हार्ट रेट इटसेल्फ, कि अगर कंट्रक्शन जो होगी वो क्विक होगी तो टाइम कम मिलेगा, और अगर कंट्रक्शन आपने रिदमिक सही तरीके से होगी तो इसीलिए ये जो रिदम डिस्टर्बेंसेस हैं, स्लो हार्ट रेट से भी प्रॉब्लम हो जाती हैं और फास्ट हार्ट रेट से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस फिजियोलॉजी को कॉरेस्पॉन्डिंगली आप पैथोलॉजी में डाल सकते हैं कि हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैथोलॉजिकल स्टेट। अगर ब्रीडी एरिथमियाज हो या टिकी एरिथमियाज हो तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं, उनके रिलैक्सेशन तो ठीक तरीके से नहीं होगी ना, तो heart failure can be affected by the heart rate, number 1 यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ। एंड नंबर 2, अगर आइसोलेटेड हार्ट के अंदर अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो ठीक तरह से रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो यू विल हैव समथिंग कॉल्ड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अच्छा, ये वो फिजियोलॉजिकल डिस्कशन थी जो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे थे as far as I understand। तो अगर अभी आप लोग इसको समझे तो you will find it quite easy। फिर मुझसे पूछे कार्डियक आउटपुट आपका क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये तो आपको पता है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ड्यूरिंग मैक्सिमम कंट्रैक्शन जो होता है, दैट इज सिस्टोलिक। आपकी मैं देख लेता हूँ, अगर है नहीं है ठीक है तो यहीं पर ये डिफिनेशंस कर देता हूँ। एंड यू हैव गॉट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हिच इज द प्रेशर ड्यूरिंग, is the minimum pressure, that is the maximum pressure in the aorta when the blood is ejected, and it's usually around 120-130 जो normal blood pressure होता है। और diastolic blood pressure, it's minimum blood pressure during diastole। हार्ट रिलैक्स हो गया, इस वक्त कितना प्रेशर है
आर्टीरियल सिस्टम के अंदर। पल्स प्रेशर आपको याद है? एनीबॉडी? पल्स प्रेशर? शाबाश। Difference between systolic and diastolic pressure. शाबाश बेटा। और मीन आर्टीरियल प्रेशर? मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो होता है आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसके साथ 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर जब आप मिला लेते हैं, ये आपको मीन आर्टीरियल प्रेशर बना लेता है। और मीन आर्टीरियल प्रेशर का क्या मतलब होता है? कंसेप्ट बनाया अपना कि एक तो ये प्रेशर बन गया ड्यूरिंग सिस्टोली, सो दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक प्रेशर बन गया आपके डायस्टोलिक, और इन दोनों का डिफरेंस हुआ आपका पल्स प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि सिस्टोली में ज्यादा है, डायस्टोली में कम है। तो ये अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है कि प्रेशर बहरहाल बरकरार रहे, ये जीरो तक ना आ जाए। जीरो तक आएगा तो ब्लड वापस हार्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो मीन प्रेशर ड्यूरिंग द होल कार्डिक साइकिल तो एक वो है ना, कंट्रक्शन रिलैक्सेशन। तो ड्यूरिंग द होल कार्डिक साइकिल मीन प्रेशर कितना है, तो वो आप थ्योरेटिकली मैथमेटिकली इस तरह निकाल लेते हैं कि आपका डायस्टोलिक प्रेशर और 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। तो अब 120/80 किसका ब्लड प्रेशर है? 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना हुआ? 1/3 of 80 is something like कितना बन गया? 25 to 75। चलो 25 फर्ज कर लेते हैं। इसका ब्लड प्रेशर 75 है, 75 हो गया। तो 1/3 is 25, तो 25 और प्लस 80, तो ये हो गया 105। 105 is the mean arterial pressure of this person, जिसका ब्लड प्रेशर है 120/75। तो इस मीन आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है, राइट? और इसको कांस्टेंट रखने की कोशिश की जाती है फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और मेनली उसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज की है? एक इमीडिएट, ताकि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसको कम करना पड़ता है। और अगर आफ्टरलोड की बात आ रही है, आफ्टरलोड इज आर्टिक प्रेशर, जी बिल्कुल। फेफरल रेजिस्टेंस, वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि आर्टा में और आगे ब्लड वेसल्स में, आर्टीरियल्स में कहाँ पे, लेकिन ये मैं पूरा अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और सेकंड पॉइंट, आई डोंट नो कि आप कौन सा सेकंड पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन यू कैन टेल मी थ्रू योर माइक जो समझ नहीं आ रही। तो अभी मैं नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स में कि किस तरह अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी उसको कम कर दी, और कम होता है तो किस तरह इसको वापस ले आते हैं। इसको कहते हैं आपका नॉर्मल रेगुलेशन। तो प्री लोड की डेफिनेशन क्या है? पैसिव स्ट्रेच ऑफ द मसल प्रायर टू कंट्रैक्शन। तो ये स्ट्रेच कहाँ से आएगी? ये आएगी जो वॉल्यूम आ रहा है कंट्रैक्शन से पहले, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं, स्वान्स कैथेटर होता है एंजियोग्राफी में, वो यूज करते हैं, उससे हमें पता चलता है। कंप्लायंस का लफ्ज अगर आप नहीं समझते, इट टेल्स यू अबाउट द कैपेबिलिटी कि ये कितना रिलैक्स कर जाता है। तो उस लिहाज से प्री लोड एक इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट होता है। फॉर सम रीजन स्लाइड्स चेंजिंग में आ जाती हैं। और आफ्टर लोड, अभी किसी ने पूछा भी था, फोर्स अपोजिंग आर द स्ट्रेचिंग मसल्स आफ्टर कंट्रैक्शन बिगिन। तो जब कंट्रैक्शन हो जाती है तो फोर्स क्या है? वही जो कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ये जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है आर्टा में और आगे जाके, तो ये आगे जाएगा और आपका आफ्टर लोड बनाएगा। नॉर्मल ability of the muscle to contract is contractility. In other words, how healthy is your heart muscle? अगर इसको ठीक ठाक ब्लड मिल रहा है, इस्कीमिया और इस्चीमिया नहीं है, हाइपरट्रफी या डिलेटेशन नहीं है, मसल्स इसके हेल्दी हैं, तो योर हार्ट इज हेल्दी, राइट? तो ये चीजें डिटरमिन करती है।
तो ये डायग्राम है और ये मैंने एंड में भी डाला हुआ है आज के लेक्चर का, क्योंकि एंड में थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर दोबारा से एक्सप्लेन करना है, इस लिहाज से कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो ये जो बाहर से ये जो एरियाज है ना रेड वाले, रेड को आप बिल्कुल ही इग्नोर कर लें, ठीक है। यहाँ पर इस स्लाइड में हम अभी इस रेड सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये है आपका कार्डिक फंक्शन और कार्डिक आउटपुट। तो क्या होता है, कार्डिक आउटपुट कम हो गया। कार्डिक आउटपुट क्यों कम हो गया? ब्लड लॉस हो गया, कोई हेमरेज हो गया, कोई इन्फेक्शन, कोई ऐसी बीमारी है, वट एवर द प्रॉब्लम इज, और यह बीमारी भी नहीं है, फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही कार्डिक आउटपुट कम होना शुरू हो जाता है, बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन, तो कार्डिक आउटपुट कम होने से ब्लड प्रेशर आपका कम होगा ना। तो ये जो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट का सिंबल है, इसको आप यूं ले लें कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर जो है, ये बैरो रिसेप्टर्स भी सेंस करेंगी और इसके साथ आप कीमो रिसेप्टर्स भी बना लें। कहां पर है बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स? शाबाश, एनीबॉडी? ये लड़कियां तो मैं सारे फेल करूंगा। अच्छा, मैं तो खैर नहीं कर सकता, वो फिजियोलॉजी एनाटॉमी वालों से कहूंगा, क्योंकि बिल्कुल Bifurcation of carotid artery. शाबाश। और दूसरा आर्च ऑफ द आर्टा, राइट। सो आर्च ऑफ द आर्टा में और बाइफर्केशन में ये रिसेप्टर्स होती हैं, तो दे गेट स्टिमुलेटेड और उसकी वजह से और वो इंफॉर्मेशन चली जाती है हायर अप इन द ब्रेन टू द मेडुला, और मेडुला में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आ जाती है नीचे इंफॉर्मेशन। तो पैरासिम्पैथेटिक इज थ्रू वेगस, वो हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है मेनली इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रक्शन। सिंपैथेटिक का क्या काम है? इंक्रीज फोर्स ऑफ कंट्रक्शन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज पावर ऑफ कंट्रक्शन। तो दिस विल रिजल्ट इन ये कहाँ गया ये कर्सर, ये आप देंगे, राइट। It will lead to increased cardiac output and increased blood pressure. अगर हार्ट ज्यादा पावरफुली कंट्रैक्ट करेगा, ज्यादा तेज रफ्तारी से चलेगा, तो it will be bad. Similarly, a drop in the blood pressure or decrease in the heart rate, decrease in the cardiac output or in the blood pressure will lead to decreased blood flow. Right? Decrease blood flow to the kidneys. और किडनीज में क्या होगा? You got renin angiotensin system. याद है किसी को क्या होगा? Yes, again एक बंदी की जिम्मेदारी है, वो बेचारा रिस्पॉन्ड कर रहा है। Renin will be released from juxtaglomerular apparatus of the kidney, will act upon the precursor angiotensinogen, converting it into angiotensin 1, and under the effect of S, it will convert into angiotensin 2, and angiotensin 2 results in vasoconstriction and working upon the heart, increased contractility. तो long term में ये है auto regulation of the heart, right? कि immediately ये आपके बैरो और कीमो रिसेप्टर्स करेंगे और लॉन्ग टर्म में और इनका एल्डोस्टेरॉन और इसका क्या काम होता है? एल्डोस्टेरॉन आगे जाके किडनी पे अमल करता है, सोडियम को रिटेन करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम। ये एक यहाँ पे है सोडियम रिटेंशन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, H2O रिटेंशन, आल्सो ये है एल्डोस्टेरॉन का एक्शन। So sympathetic severe aldosterone or angiotensin. So I hope this thing explained to you how the heart, the blood pressure is auto-regulated. जी, अब पूछें कि है कोई इसमें difficulty या problem, so that when this system fails, या heart conduction fails,
we develop heart failure. आज मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम इसलिए देना चाहता था। शाबाश, कुछ रिस्पॉन्स करें कि मुझे पता चले कि सर, जो जी बेटा सर कार्डिक आउटपुट का हार्ट रेट के साथ क्या ताल्लुक है सर, रिलेशन से? रिलेशन ये है बेटा कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सॉरी कार्डिक आउटपुट जो आपका है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को मिलाने से होता है ना, कि इतना वॉल्यूम है और 1 मिनट में आप इतना वो करते हैं, तो दैट इज योर टोटल कार्डिक आउटपुट। हार्ट रेट जितना ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम होगा। कार्डिक आउटपुट को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, दोनों बढ़ेंगे तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। अब आप इमेजिन करें ना कि कंट्रैक्शन हो रही है, तो अगर ये जल्दी जल्दी कंट्रैक्शन हो रही है, राइट, तो उसको रिलैक्स होने का मौका इतना नहीं मिलता, राइट। So that is how you calculate the cardiac output is stroke volume into heart rate. Okay, so let's talk about pathophysiology मैंने कही थी ना, तो अब जरा pathological aspect, medicine aspect, disease aspect, और ये तकरीबन कल की कुछ इस पे रिपीटिशन आ जाती है क्योंकि मैंने ये चीजें समझा दी थी। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब हार्ट का कोई मसल पार्ट ऑफ मसल जो है वो डेड हो जाता है, तो मायोकार्डियम डेथ इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और उससे एंजाइम्स लिबरेट हो जाते हैं। अगर क्रॉनिकली इसको ब्लड कम मिल रहा है तो एक्यूट इन्फार्क्शन नहीं होता, इट इज क्रॉनिक इस्कीमिया। Cardiomyopathy is a condition where the heart muscles are diseased. और arrhythmias क्या है? When you have got disturbance of rhythm. When you have got disturbance of rhythm, slow rhythm, fast rhythm, or atrial fibrillation, or ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, supraventricular, बहुत सारी है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे आपको। Diastolic dysfunction, अभी मैंने बताया, difficulty or problems in relaxing, और valvular heart disease एक ग्रुप ऑफ डिजीज है जो इफेक्ट करता है हार्ट वेल्स को, या पैदाइशी तौर पे या बाद में, तो उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस आ जाता है, एओर्टिक वेल की नैरोइंग, माइट्रल वेल की नैरोइंग, माइट्रल रिगर्जिटेशन, और ये इतने प्यारी प्यारी मजे की चीजें हैं क्लिनिकल कि ऑन द बेड साइड आप सीखेंगे, आप स्टेथोस्कोप रख के ये जो हार्ट साउंड सुनते हैं, तो आप नॉर्मल हार्ट साउंड सुनते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, आप मर्जर सुनते हैं, आप एडिशनल साउंड सुनते हैं, और आप उधर ही बता देते हैं कि हाँ इस पेशेंट का एओर्टिक वेल डिजीज है, इस पेशेंट का माइट्रल वेल डिजीज है, एंड दिस इज अ फेलिंग हार्ट। ये एक आर्ट है इंशाल्लाह जो आप डेवलप करेंगे कि बेड साइड पे आप कहेंगे कि दिस इज अ फेलिंग हार्ट, और ये इसको अंडरलाइंग वल्वुलर डिजीज है, और फिर आगे इन्वेस्टिगेशन से कंफर्म करेंगे और ट्रीट करेंगे। हार्ट फेलियर को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? एक तो एनाटॉमिकली स्पीकिंग, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, सेकंड अभी मैं आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फिजियोलॉजिकली सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, और मेरे ख्याल में ये भी आप एक हद तक समझ गए। सिस्टोलिक में क्या होगा? पंपिंग डिफेक्टिव होगी, डायस्टोलिक में रिलैक्सेशन डिफेक्टिव होगी। पहले शुरू में सिर्फ सिस्टोलिक को हार्ट फेलियर कहते थे, बाद में इन लोगों को समझ आ गई कि डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होगी। और फंक्शनली हाउ मच सिम्टोमेटिक इज योर पेशेंट, तो आप हार्ट फेलियर को क्लासिफाई करते हैं। एक बड़ी फेमस क्लासिफिकेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होती है, उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन, NYHA। तो NYHA में आप कहते हैं ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है। उसका मतलब होता है कि ये बंदा कितना चल सकता है, ये बंदा 4-6 कदम चल सकता है, ये बंदा 100 मीटर तक, और ये जो है हमवार रास्ते पे चल सकता है, ऊपर नहीं चल सकता। तो लेफ्ट और राइट हार्ट फेलियर अलग अलग सी यहाँ पे स्ट्रक्चर उसके लिए मैंने डाल दी है, लेकिन आपके लेवल पे यही समझना काफी है कि ये इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं।
The most important symptom of heart failure is decrease exercise tolerance. बंदा चल नहीं सकता, सांस फूल जाता है, right? अब let me put it the other way around. सांस फूलने की सबसे important वजह heart failure नहीं है. हो सकता है कि आप फिट ना हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपने आदत नहीं डाली, तो इसको यूं समझे कि डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस फूलना, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज हार्ट फेलियर, राइट? तो हार्ट फेलियर इज नंबर, डिस्निया इज नंबर 1 सिम्टम्स. और ये जो लफ्ज है डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, तो एक ही मतलब होगा ना कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते, कफ आता है. एक और है ऑर्थोपनिया, जब एडवांस हो जाता है फिर आप लेट नहीं सकते, लेटेंगे. ये क्यों? लेफ्ट हार्ट फेलियर के साथ बतौर खास लिखा हुआ है ऑर्थोपनिया, जो मैंने शुरू में बताया था, आपने बताया था बल्कि. पल्मोनरी कंजेशन, लंग्स में कंजेशन हो जाती है, राइट? तो अगर लंग्स में कंजेशन होगी तो बंदे को सांस लेने में मुश्किल होगी, राइट? कफ, पिंक फ्रॉथी स्पूटम, स्वेलिंग, ये जो पेरिफेरल सर्कुलेशन आपका एनगार्ज हो गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कलेक्शन, इंक्रीज इन द वीनस डिस्टेंशन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन होगा, लिवर डिस्टेंशन होगा, पीठ के अंदर, एब्डोमेन का अंदर एसाइटिस या फ्री फ्लूइड होगा. ये सारी राइट साइड फेलियर की इसलिए अलामत है कि वीनस साइड पे इनगॉर्जमेंट है, कंजेशन है. अब इसको यूं सिंपल समझे कि लेफ्ट हार्ट की वजह से लंग्स में कंजेशन है और राइट हार्ट की वजह से पेरिफेरल जो आपका वीनस सिस्टम आ रहा है. दूसरा भी मैंने बताया ना, सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक, तो बड़ी खूबसूरत बात ली जी बेटा. कुछ नहीं, सिस्टोलिक कैन नॉट पंप, डायस्टोलिक कैन नॉट फिल, है ना? बड़ी कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात. डायस्टोलिक हार्ट में, हार्ट फेलियर में, द हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ फिलिंग और कॉरेस्पॉन्डिंगली पंपिंग, और यहाँ पे कैन नॉट पंप. एओर्टिक वेल स्टीनोज होगी, नैरो होगी, पंप नहीं कर सकेगी. एओर्टिक वेल वो होगी, उसको क्या बोलते हैं, लीकिंग वॉल, रिगर्जिटेंट वेल. हाइपरटेंशन होगा, माइट्रल वॉल रिगर्ज करेगा. तो ये वल्वुलर डिजीजेस और मसल डिजीजेस, मसल्स डिजीज्ड है इस्कीमिक हार्ट की वजह से, फाइब्रोज्ड है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मसल्स होती है, जैसे सार्काइड हुआ, या रेयर डिजीजेस हैं, अमाइलाइड डिपोजिशन हार्ट में हुआ. तो ये सारी चीजें जो है ये ऑन द सिस्टोलिक साइड. और डायस्टोलिक आप सोचे और इसको इमेजिन करें. माइट्रल स्टेनोसिस होता है जब माइट्रल वेल नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है, ब्लड आगे पास नहीं होता, राइट? कुछ शेड आ रही है, लेट मी सी. Dyspnea on exertion means difficulty in breathing while you are exerting, right? तो exertion फिर grades हैं, चलने में, भागने में, ऊपर चढ़ने में. Fibrosis mean fibrous tissue is laid down. तो जो normal tissue होता है मसल का या हार्ट का, तो अगर वो डिजीज्ड हो तो फाइब्रस टिश्यू आ जाता है. अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रोसिस, हाइपरट्रोफी, ये सारी चीजें जो है इसकी वजह से वो प्रॉपर्ली नहीं होगा. टेम्पनेट, टेम्पनेट का मतलब होता है कि जब हार्ट के इर्द गिर्द आपका फ्लूइड आ जाता है या ब्लड आ जाता है, डिफरेंट डिजीज में होता है ये, तो हार्ट पे रिलैक्स नहीं हो पाता ना. आप इमेजिन करें एक तेली, हार्ट को एक तेली के अंदर डालें और इस तेली में इस शॉपर में जिसमें हार्ट पड़ा हुआ है, इसके इर्द गिर्द फ्लूइड है, टाइट फ्लूइड. तो
इसने कैसे रिलैक्स होना है, नहीं होना ना. So that is how diastolic dysfunction happens. So these are the main symptoms of heart failure. फिर आपने investigate करना है. High output failure, low output failure, ये इतना important है आपकी stage में. Heart failure, right heart failure, lung diseases की भी हो जाता है. बड़ा important reason है कि नंबर 1 राइट हार्ट फेलियर आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से हो जाता है. किसी बंदे को लेफ्ट हार्ट फेल हो रहा है तो बाद में जाके आप लेफ्ट राइट के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, बस राइट ये हार्ट फेलियर को समझे कि बेसिकली ये होती है. और काजेस में मैंने आपको बता दिए, नो नीड टू रिपीट इट. P&D लफ्ज यहाँ पे आ गया, paroxysmal nocturnal dyspnea. इन पेशेंट्स को सोते में ये डिस्निया हो जाती है, शांति हो जाती है और इमीडिएटली जाग जाते हैं और सांस फूला होता है. उसको हम बोलते हैं क्लिनिकली P&D, paroxysmal nocturnal dyspnea. एक्सर्शनल डिस्निया वो डिस्निया जो एक्सर्शन से हो, और अर्थोपिया जो लाइंग डाउन से हो. एनोरेक्सिया, भूख कम लगती है, फटीग, ये जल्दी वो हो जाते हैं, थक जाते हैं. इंक्रीज साइंस सिम्टम्स मरीज बताता है, मुझे सांस फूलता है, ये होता है, वो होता है चेस्ट पे. साइंस आप एग्जामिन करते हैं तो आपको पता चलता है कि जुगुलर वीनस पल्स ज्यादा है, स्वेलिंग है डिपेंडेंट एरियाज में. ये क्लिनिकली इंशाल्लाह आपको समझाएंगे कि आप कैसे देखते हैं. टेंडर हेपेटोमेगाली है, लिवर इलाज है, एसाइटिस है. एसाइटिस इज फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमेन. और आप लंग्स सुनते हैं और आपको मिलता है कि बेसल क्रेकल्स हैं, एपेक्स भी डिस्प्लेस है, टेकिकार्डिया है. अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि आप बेड साइड पे क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे कि हाँ इस बंदे को हार्ट फेलियर है. अच्छा भाई, अभी आपने इसको इन्वेस्टिगेशंस करना है, तो मोटे मोटे इन्वेस्टिगेशंस, और आई विल रेफर टू ब्रीफली टू द ट्रीटमेंट. तो फुल ब्लड काउंट करेंगे, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, थायराइड टेस्ट करेंगे. अब ये चीजें इसलिए होती है, इसको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, कि आपको कोई एनीमिया मिलता है कि इसका हार्ट का भी इशू है और एचबी भी इसका कम है, तो जाहिर है कि इस बंदे का तो फिर बहुत ही फूलता होगा. किडनी भी इफेक्ट हो गई है, तो यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स से आपको पता चल जाता है सीरम क्रेटिनिन, थायराइड स्टेटस. चेस्ट एक्सरे में अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, और इसी में आपको कोई इस्कीमिया का एविडेंस मिलता है. पहले इसको अगर वो हो गया है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, राइट, तो इसको 12 लीड ईसीजी बोलते हैं. और इसमें हम डिफरेंट ये देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस. तो इसकी बेसिस आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती है इस स्टेज पे, लेकिन एब्नॉर्मलिटीज नहीं पढ़ाई जाती. अब ये जो ईसीजी है इसमें इस्कीमिक चेंजेस है, इसका जो टी वेव है ये टी वेव, तो इसको आप देखें ये यहाँ इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यहाँ पे बाइफेजिक, तो इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इस्कीमिक चेंजेस. लेकिन सबसे जो अहम हार्ट फेलियर के लिए है ना इन्वेस्टिगेशन, अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, तो वो ईसीजी नहीं है. ईसीजी आप करते हैं इन्फार्क्शन के लिए, एसटी सेगमेंट, किसी को चेस्ट पेन हो रहा हो ना, इसको हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें आप ईसीजी करेंगे. हार्ट फेलियर के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो एको होगा. इसमें आप क्या देखते हैं एको में? यू फाइंड साइज एंड फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल. एको इतनी मजे की चीज है कि आप बड़ी आसानी से हर एक चेम्बर का, हर एक वेल का डायमीटर और चेम्बर का डायमीटर और वेंट्रिकल की वॉल का डायमीटर, ये आप मेजर कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि एट्रिया या वेंट्रिकल के साइज में और इसकी फंक्शन. अब एकोज एडवांस हो रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी तरीके से कंट्रक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है. और कोई पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जो अभी मैंने बताया ना कि हार्ट के फ्लूइड, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल एफ्यूजन. It's beautifully visualized and you can see. अच्छा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज के हवाले से एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको एको में मिलती है, और उसको हम बोलते हैं
सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी. बाय द वे, ये स्लाइड्स या ये पढ़ाई जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग इट टू मेक इट वेरी सिंपल कि आप इसको फॉलो करें, समझें. दिस इज ऑल फाइनल ईयर. तो ये आपका जो नया सिस्टम है, इसमें ये आ गया है आपके लिए कि अभी आपका हार्ट मॉड्यूल चल रहा है, कार्डियोवैस्कुलर चल रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ हार्ट फेलियर. तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्वाइट सिंपल फॉर यू कि आप इस कदर समझें कि इसकी क्या है. और आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो भी इस तरह होंगे. मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल, a 50-year-old man suffering from ischemic heart disease, known case of hypertension. He's got shortness of breath, right? Complaining of dyspnea. Uska blood pressure itna, uska pulse rate itna. So what are the auto-regulatory factors involved here? And what is the role of the kidney? आपको MCQs नीचे फला है, उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन की बात आएगी, इसका रेनिन ज्यादा होगा कि नहीं, एंजियोटेंसिन ज्यादा होगा कि नहीं. तो आपने इस पैथोलॉजी को उस फिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है या उस फिजियोलॉजी को इस पैथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखना है. तो मैं ये आपको बता रहा था कि ऑन एको यू विल हैव कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो आपको इस्कीमिया एज सच एको में नजर नहीं आएगा. वो जो अफेक्टेड एरिया है, वॉल मोशन, उसकी एब्नॉर्मलिटी नजर आएगी. जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी हाइपोकाइनेसिया होगी, डिक्रीज मोमेंट होगी, या फिर हार्ट एज अ होल ग्लोबल हाइपोकाइनेसिया, डिक्रीज मोमेंट ऑफ द हार्ट इज हाइपोकाइनेसिया. चेस्ट एक्सरे आप देखते हैं. आई होप कि ये है चेस्ट एक्सरे. अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि इसमें आपको कर्लीज लाइन ए बी नजर आती है, पल्मोनरी एडिमा नजर आता है, प्लूरल फ्यूजन. एक्सरे में आपको एट्रियल एनलार्जमेंट, एरिथमियाज, हाइपरट्रोफी, वो सारी ईसीजी में. तो ये एबनॉर्मल एक्सरेज हैं. ये जो एक्सरे है, कोई आईसीयू में पड़ा हुआ मरीज है, ये उसके लगे हुए हैं, ये जो तार नजर आ रही है, ये वाली मॉनिटर. तो इसका नॉर्मल हार्ट साइज में किसी दिन आपको एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे या खुद पढ़ाऊंगा या रेडियोलॉजी वाले के थ्रू. ये इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में आपने क्या चीजें देखनी. तो ये जितना आप व्हाइट देख रहे हैं ना, ये व्हाइट और ये व्हाइट, ये सारा फ्लूइड है. अभी जो हमने बात की ना पल्मोनरी एडीमा की, ये पेशेंट जो है, इट इज क्लासिकल पल्मोनरी एडीमा. the lungs are filled with fluid. और ये हार्ट साइज इसका इनलार्ज हार्ट साइज है, नॉर्मल हार्ट से ये इनलार्ज है. तो क्यों इनलार्ज है ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये आपके स्कोप से. तो इट्स एन इनलार्ज हार्ट. ये भी बड़ा इनलार्ज है, तो आपको नजर आ रहा है, राइट, विद स्ट्रेट लेफ्ट बॉर्डर. इसमें पल्मोनरी एडीमा इतना कुछ भी नहीं है. यहाँ पर आपको कभी कभी एफ्यूजन्स नजर आएंगे साइड. तो चेस्ट एक्सरे इमीडिएटली आपको पता चल जाता है कि दिस इज अ फेलिंग हार्ट, और ईसीजी पेपर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है. ये अर्लियर स्लाइड है, किसी वजह से बाद में आ गया है, कि जब आप पेशेंट को सुनते हैं तो आपको मरमर्स की, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आपको हार्ट साउंड्स, मरमर सुनाई देते हैं. तो ये स्टेथोस्कोप से आप ये सुनते हैं. और फिर एबनॉर्मल S3 और S4. तो रीनल फंक्शन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. और ये कुछ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है, कहते हैं नाइट्रोजेनिक पेप्टाइड्स. तो BNP इमरजेंसी रूम में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं. हार्ट फेलियर में ये बढ़ जाते हैं. तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो वो एक्यूटली आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट ट्रीटिंग हिम, और आप असेस करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं. लेकिन मीन टाइम में उस बेचारे को बड़ा डिस्निया है, तो आप उसको बिठा लेते हैं. लेटाने से उसका डिस्निया ज्यादा हो जाता है. ऑक्सीजन लगा देते हैं क्योंकि वो हाइपोक्सीमिक है.
आजकल जो कोरोना की कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनका भी डिस्निया होता है, उनको ऑक्सीजन लगना होता है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ द पल्मोनरी डिजीज। वो हार्ट डिजीज की वजह से नहीं होता, लेकिन उनको भी बड़ा सीवियर डिस्निया। तो डिस्निया अमूमन पल्मोनरी डिजीज, हार्ट डिजीज, कभी कभी कॉम्बिनेशन, और कभी कभी सीवियर एनीमिया और अदर काजेस की वजह से। अच्छा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एक ये जनरल जो मैंने बता दिया कि पेशेंट को आपने बिठा दिया और ऑक्सीजन लगा दिया और उसका असेसमेंट आप कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट आप उसी फिजियोलॉजी की बुनियाद पर करें, क्योंकि ये जो पैथोलॉजी है ये क्या है? दिस इज अल्टर्ड पैथोलॉजी। उसका हार्ट रेट बढ़ रहा, उसका एरिथमिया है, उसका बड़ा गड़बड़ है हार्ट रेट में, तो आपने उसको देखना है। उसका प्री लोड जो है वो बढ़ गया है, इसलिए उसको स्वेलिंग है, इसलिए उसको एडिमा है, तो आपने प्री लोड कम करना है। उसका आफ्टर लोड बढ़ गया है, ये आपने कम करना है। उसकी कंट्रेक्टिलिटी कम हो गई है, तो ये कंट्रेक्टिलिटी आपने बढ़ानी है, और उसकी ऑक्सीजनेशन कम हो रही है, आपने इसको बढ़ाना है। तो आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो इस फिजियोलॉजी को करेक्ट करना होगा। तो इसलिए ये जो स्लाइड था, ये मैंने आपसे कहा था कि ये बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वो सारी फिजियोलॉजी जो शुरू में मैंने दिखाई वो डिस्टर्ब हो गई, और अब आप डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। ये जो रेड में है ये अभी अगेन, लेकिन ये जो पैथोलॉजी है, जो जो फिजियोलॉजी थी, इसको कंपेंसेट करने के लिए वो बहुत बढ़ गई है। तो इस पेशेंट को रिटेंशन भी है, इसका सोडियम भी ज्यादा है, तो आपने डाययूरेटिक्स फौरन देने हैं, आपने डाययूरेटिक्स दे के ये वॉल्यूम कम करनी है। ये जो इसका रेनल एंजियोस्टेसिस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तो यहाँ पे आपने ऐसे ही इनहिबिटर्स देने हैं, और यहाँ पे जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है तो आपने बीटा ब्लॉकर्स दे के इसको डैम्प डाउन करना है। ये जो इसकी मायोकार्डियल कंट्रक्टिलिटी कम हो गई है, फेलियर में चला गया है, तो इसको आपने कोई कार्डिक टॉनिक देने हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स देने हैं। तो आपकी सारी ट्रीटमेंट जो है वो ये रेड लाइंस इसको बता रहे हैं कि आपने इस चीज को, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसको आपने कम करना है, राइट? तो दैट इज हाउ ब्यूटिफुली द पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी हो जाती है। ऑक्सीजन आप देते हैं, आप नेजल देते हैं, बाई पेप नॉन इन्वेसिव होता है, या फिर इंट्यूबेशन। ये चीजें आजकल कोरोना के हवाले से भी आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, क्योंकि इन लोगों को रेगुलरली ऑक्सीजनेशन देनी पड़ती है पेन कम करने के लिए, और पल्मोनरी एडीमा कम करने के लिए मॉर्फिन देते हैं। ये जो लूप डायरेटिक्स होते हैं जो बॉडी से फ्लूइड निकालते हैं, ये प्री लोड रिडक्शन के लिए हम देते हैं, और नाइट्रेट्स और ऐसी इनहिबिटर्स। आफ्टर लोड भी नाइट्रेट से ही कम हो जाता है। हाइड्रोलिजीन भी इसके लिए यूज करते हैं, और आइनोट्रोफ वो ड्रग्स हैं जिनकी वजह से आप वो चीजें ना पूछा करें जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके लेवल की नहीं होती। बाई पेप और सी पेप और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आप सुन रहे हैं ना कि कोरोना की वजह से फ्ला वेंटिलेट नॉन इन्वेसिव उस पे है, तो ये उस मैं स्किप कर देता हूँ, मैं आपको वो चीज बता देता हूँ जो आपके लेवल का है, राइट? तो बाई पेप इज ए पर्टिकुलर बाई मॉडल जिसमें आप एयर इंजेक्ट भी करते हैं, वापस सक भी करते हैं। एनीवे तो उसको छोड़े, बस यही कि आप ऑक्सीजन देते हैं, और अगर ऑक्सीजनेशन नहीं होती तो आप वेंटिलेशन कर लेते हैं। आफ्टर लोड रिडक्शन हुआ, आइनोट्रोपिक सपोर्ट कि आप हार्ट कंट्रक्शन को तेज करने के लिए दवाएं देते हैं। तो अगेन इन दवाइयों को मैं ज्यादा डिस्कस और इनकी डिटेल इसलिए नहीं बता रहा कि ये फार्माकोलॉजी वाले आपको रेलेवेंट उसमें बता देते हैं। तो दैट इज हाउ यू ट्रीट हार्ट फेलियर। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। आगे मैं देखता हूँ
कोई स्लाइड नॉर्मल डिजॉक्सिन की भी जरूरी नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स का एक रोल है। फ्लूइड बैलेंस आप रख लेते हैं कि फ्लूइड आपने ज्यादा नहीं लेनी, साल्ट ज्यादा नहीं लेनी, आप डेली इनका वेट चेक करते हैं, और अगर किडनी प्रॉब्लम हो तो डायलिसिस तक बात जाती है। एस्प्रिन यूज होती है हार्ट में, और आप देखते हैं कि इसको क्यों हार्ट फेलियर हुआ, तो वो आपने ट्रीट करना है। अगर इस्कीमिक हार्ट है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ये हार्ट ज्यादा खाता रहा, कोई ऐसी दवाइयां इसने खाई है जिसकी वजह हार्ट कंडीशन वर्ड, जब आगे फोर्थ में फाइनल में आप हार्ट डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बताऊंगा। ने अंडरस्टैंड कर लिया है, और आई हैव ट्राइड प्री लोड, ये बताया था शायद आप उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे थे। जो वीनस साइड पे जो वॉल्यूम है दैट इज प्री लोड, तो जितना मतलब हार्ट कंट्रक्शन से पहले, राइट, तो पहले क्या होता है, वीनस साइड से आ रहा था ना, तो दैट इज प्री लोड। और एग्जैक्ट डेफिनेशन जो इसकी है वो ये कि हार्ट स्ट्रेच करने से पहले उसके ऊपर कितना लोड पड़ रहा है, तो प्रीलोड और आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड आर्टेरियल सिस्टम में है, प्रीलोड वेनस सिस्टम में है, और देन द कंट्रक्शन इटसेल्फ। अच्छा, हमाद नूर मर्डा यारा चिटोल